Good morning, everyone. So, in the chapter 9, yesterday we started exercise 9.4 based on the Pythagoras theorem, which is applied on right angle triangle only. Okay, so what is Pythagoras theorem? Hypotenuse square is equals to base square plus perpendicular square. Fine. So, hypotenuse is the longest side of the right angle triangle opposite to the right angle in the triangle. Okay. So, till question number 5 we have done, and question number 3 and 4 were left. So today I will give those two questions in the homework. Now question 6 is what? Length of a rectangular field is 12 kilometer and breadth 9 kilometer. Find length of its diagonal. What is given in the question? There is a rectangular field, a rectangle shaped field whose length and breadth is given. Okay, so it is asked that find the length of diagonal of that rectangular field, or you can say rectangle. Fine. So I have drawn a rectangle here, ABDC. ABDC, a rectangle I have drawn here. So this is the rectangular field. The length is 12 kilometer given and the breadth is 9 kilometer given. Okay. So diagonal will be BC and AD. Both will be diagonal. I am taking the diagonal BC. सिर्फ एक डायगोनल क्यों ले रही हूं मैं? क्योंकि दोनों डायगोनल्स की लेंथ सेम होती है. रेक्टेंगल के जो दोनों डायगोनल्स होते हैं उनकी लेंथ सेम होती है. सो वी हैव टू फाइंड द लेंथ ऑफ वन डायगोनल ओनली. फाइन. सो अब इस डायगोनल के अकॉर्डिंग इफ यू सी देयर आर two triangles made in this rectangular field. First triangle is ABC and the second triangle is BCD. Okay, so I am taking the triangle ABC to find the length of this diagonal. So you can see triangle ABC is the right angle triangle. Angle A is 90 degree. Okay, 12 kilometer is its base and 9 kilometer is its perpendicular. Means AB इसका base है और AC इसका perpendicular है, and BC will be the hypotenuse for right angle triangle ABC. ओके, मीन्स जो इस रेक्टेंगुलर फील्ड का या रेक्टेंगल का डायगोनल है वो ट्राइंगल ए बी सी का हाइपोटेन्यूज है. ओके, सो आई हैव रिटन इट ओवर हेयर. In rectangular field ABDC, length is given 12 kilometer and breadth is given 9 kilometer. So length will be equal to the base of triangle ABC. जो ये length है, ये इस triangle right angle triangle का base है 12 किलोमीटर, और जो ये breadth आपको given है 9 किलोमीटर, ये perpendicular है triangle ABC का 9 किलोमीटर. Okay, and hypotenuse is the length of diagonal. हाइपोटेन्यूज क्या है? डायगोनल की लेंथ. तो अगर मैं पाइथागोरस थ्योरम से इस हाइपोटेन्यूज की लेंथ फाइंड कर लेती हूँ तो मुझे डायगोनल की लेंथ भी मिल जाएगी. ठीक है, सो आई हैव रिटन इट. डायगोनल ऑफ द रेक्टेंगल इज इक्वल्स टू हाइपोटेन्यूज ऑफ ट्राइंगल ए बी सी. हिमांशी, पुट स्क्वायर्स ऑन देम बेटा. Okay, so by Pythagoras theorem, you know hypotenuse square is equals to base square plus perpendicular square. Base is 12 and perpendicular is 9. Fine. So 12 square plus 9 square. 12 square means 12 multiplied by 12. And 9 square means 9 multiplied by 9. So 12 और 12 को आप multiply करोगे, it will be 144. And 9 9s are 81. Okay. So इन दोनों को आप add करोगे, it will be 225. एंड आप यहाँ पे देख सकते हो इट इज एच स्क्वायर. सो एच स्क्वायर वी हैव टू फाउंड, वी हैव टू जस्ट कन्वर्ट दिस नंबर इन स्क्वायर फॉर्म. ये 225 हमें इस तरीके से कन्वर्ट करना पड़ेगा कि उसकी पावर भी 2 आ जाए, सो दैट वी कैन कंपेयर बोथ ऑफ दी साइड्स. फाइन. सो 225 मैंने yesterday also I told you it is 15 into 15. So 15 into 15 is 15 square. So base, if powers are equal on both the sides, then base will also be equal. So hypotenuse will be 15 kilometer. Why have I written kilometer here? Because the unit is given kilometer. Rectangular field की जो length और breadth है वो आपको kilometers में given है, इसलिए किलोमीटर आएगा. 15 क्यों आएगा? देखिए 225 का अगर आप प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे, इफ यू वांट टू फाइंड द 225 इज द स्क्वायर ऑफ विच नंबर, किस नंबर का स्क्वायर है 225, तो प्राइम फैक्टराइजेशन कीजिए इसका. 3 से इसको डिवाइड कीजिए. 3 7 जा 21, 3 5 जा 15. 3 से अगेन इसको डिवाइड कीजिए. 3 2 जा 6, 3 5 जा 15. नाउ 5 से डिवाइड कीजिए. प्राइम फैक्टराइजेशन तो आप सभी जानते हैं, इस तरीके से होता है. सो 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5, ये हो गया.
यस, यू कैन फाइंड अंडर रूट ऑल्सो। इसका यही मतलब होता है अंडर रूट फाइंड करना है, ठीक है। ओके अमीशा, सो 3 मीन्स 3 स्क्वायर इंटू 5 स्क्वायर, ये हो गया इसका मतलब। 3 इंटू 3 इज 3 का स्क्वायर, 5 इंटू 5 इज 5 स्क्वायर। ओके, सो यू कैन सिंपली राइट इट एज 3 इंटू 5 होल स्क्वायर, मीन्स 15 स्क्वायर, 3 5 जा 15। ओके, ये जो मल्टीप्लीकेशन में यहाँ पे पावर सेम आ रही है ना, तो ये बेसिस तो अंदर आ जाएंगे ब्रैकेट के और पावर इनके ऊपर कॉमन आ जाएगी 2। ये आपको जो फोर्थ चैप्टर है पावर्स एंड एक्सपोनेंट्स, उसमें ये रूल्स हैं, वो आपने शायद अभी पढ़ा नहीं है, तो इसलिए आपको थोड़ा समझने में प्रॉब्लम आएगी। व्हेन यू विल स्टडी दैट चैप्टर यू विल कम टू अंडरस्टैंड इट इजीली। ओके, सो 3 इंटू 5 स्क्वायर मीन्स 3 5 जा 15, 15 स्क्वायर। ओके, इस तरीके से फाइंड करते हैं, मतलब हमें ऐसे 2 नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन इस नंबर को बनाना है जो दोनों नंबर सेम हो, तभी तो स्क्वायर आएगा ना, दोनों नंबर सेम होंगे तभी तो उस नंबर का स्क्वायर आएगा। ओके, सो 225 होता है 15 इंटू 15, और मैंने यस्टरडे भी बोला था यू मस्ट हैव नो व्हाट इज द स्क्वायर ऑफ विच नंबर, मीन्स 2 का स्क्वायर 4, 3 स्क्वायर 9, 4 स्क्वायर 16, 5 स्क्वायर 25, 6 स्क्वायर 36, 7 स्क्वायर 49। ये सब आपको लर्न होने चाहिए अप टू 20 एटलीस्ट, 20 तक आपको स्क्वायर्स लर्न होने चाहिए। 20 का स्क्वायर क्या होता है 400। ओके, तो इस तरीके से 20 तक आपको स्क्वायर लर्न होने चाहिए। अगर आपको स्क्वायर्स लर्न हो गए तो आपको ये पूरा प्रोसेस करने की जरूरत ही नहीं है, यू कैन राइट डायरेक्टली। फाइन, सो अब देखिए दोनों साइड में एच स्क्वायर एंड 15 स्क्वायर, ये आ रहा है ना एच स्क्वायर एंड 15 स्क्वायर। पावर्स अगर सेम होती है दोनों साइड में, 2 क्या है, ये h की पावर भी 2 है, 15 की पावर भी 2 है, अगर पावर सेम होती हैं तो बेसिस भी सेम होते हैं। बेस क्या है यहाँ पे h और यहाँ है बेस 15, यानी h की वैल्यू कितनी होगी 15 किलोमीटर। किलोमीटर इसलिए लिखा है क्योंकि लेंथ और ब्रेड्थ हमको किलोमीटर में गिवन है। सो लेंथ ऑफ फील्ड्स डायगोनल इज इक्वल्स टू 15 किलोमीटर। जो डायगोनल की लेंथ पूछ रहा था जो हाइपोटेन्यूज के इक्वल थी, इट इज 15 किलोमीटर। ओके, now next question is question number 7. Find the perimeter of the rectangle whose length is 40 centimeter and a diagonal is 41 centimeter. एक रेक्टेंगल है, उसका पेरीमीटर फाइंड करना है, ठीक है। तो पेरीमीटर तो आप जानते हो 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेड्थ होता है रेक्टेंगल का, मीन्स उसका पेरीमीटर फाइंड करने के लिए मुझे क्या क्या चाहिए, रेक्टेंगल की लेंथ और ब्रेड्थ दोनों की जरूरत पड़ेगी फॉर्मूले में पुट करने के लिए। लेंथ आपको गिवन है रेक्टेंगल की 40 सेंटीमीटर, लेकिन ब्रेड्थ गिवन नहीं है, तो ब्रेड्थ हमें फाइंड करनी पड़ेगी। अब वो कैसे फाइंड करेंगे, आपको एक और चीज दी हुई है डायगोनल, रेक्टेंगल का डायगोनल दिया हुआ है 41 सेंटीमीटर, ठीक है। तो मैंने डायग्राम बनाया है, या फिर आपको बुक में ये क्वेश्चन में ही गिवन है डायग्राम इस तरीके से। यस, वेरी गुड भास्कर। ए बी सी डी एक रेक्टेंगल है, मैंने नेम दे दिया है इसका। फाइन, 41 सेंटीमीटर इसका डायगोनल है, बुक में यही दिया हुआ है, और 40 सेंटीमीटर इसकी लेंथ है। आपको उस रेक्टेंगल की ब्रेड्थ मतलब ए डी या बी सी दोनों इक्वल होंगी ना, ये फाइंड करनी है। तो कैसे फाइंड करेंगे, जैसे लास्ट क्वेश्चन में हमने रेक्टेंगल में से राइट एंगल ट्राइंगल लिया था, इसी तरीके से इस रेक्टेंगल में से भी राइट एंगल ट्राइंगल लेंगे। ओके, तो मैं ले रही हूं ये वाला ट्राइंगल बी सी डी, ये 40 सेंटीमीटर लेंथ है तो ये भी लेंथ 40 सेंटीमीटर ही होगी। फाइन, तो बी सी डी जो रेक्टेंगल ट्राइंगल है उसमें आप देखिए ये 90 डिग्री एंगल है, एंगल सी इज 90 डिग्री एंगल, तो ये राइट एंगल ट्राइंगल हो गया। इस राइट एंगल ट्राइंगल का बेस आपको 40 सेंटीमीटर गिवन है और हाइपोटेन्यूज 41 सेंटीमीटर गिवन है, ठीक है। तो मैंने क्या लिखा है, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल ए बी सी डी, रेक्टेंगल की लेंथ कितनी गिवन है 40 सेंटीमीटर, और 40 सेंटीमीटर क्या हो गई ट्राइंगल बी सी डी का बेस, तो बेस ऑफ ट्राइंगल बी सी डी, यानी बेस की वैल्यू हमें पता चल गई 40 सेंटीमीटर है, ठीक है। इस राइट एंगल ट्राइंगल के बेस की वैल्यू है 40 सेंटीमीटर। फाइन, नाउ पीछे इसी तरीके से रेक्टेंगल की जो ब्रेड्थ है, सो ट्राइंगल बी सी डी का बेस है 40 सेंटीमीटर, जो रेक्टेंगल ए बी सी डी की लेंथ है, ठीक है 40 सेंटीमीटर। इसी तरीके से ट्राइंगल बी सी डी का परपेंडिकुलर है बी सी, जो रेक्टेंगल ए बी सी डी की ब्रेड्थ है जो हमें फाइंड करनी है, और इस रेक्टेंगल का डायगोनल है बी डी, जो इस राइट ट्राइंगल का हाइपोटेन्यूज है,
ठीक है, तो हाइपोटेन्यूज की वैल्यू हो गई 41 सेंटीमीटर, बेस की वैल्यू हो गई 40 सेंटीमीटर, परपेंडिकुलर हमें फाइंड करना है। ओके, सो आगे मैंने क्या लिखा हुआ है, यस अक्षिता, डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल इज 41 सेंटीमीटर गिवन है, तो वो हाइपोटेन्यूज हो गया ट्रायंगल का। इसकी ब्रेड्थ हमें गिवन नहीं है, जो हमें फाइंड करनी है, मींस उस ट्रायंगल का परपेंडिकुलर फाइंड करना है। ठीक है, तो पाइथागोरस थ्योरम क्या है, एच स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर, तो यहाँ से पी स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ओके, हाइपोटेन्यूज की वैल्यू है 41 सेंटीमीटर, यहाँ लिखी हुई है, एच इज इक्वल टू 41 सेंटीमीटर। ठीक है, एंड ब्रेड्थ, ब्रेड्थ आपको पीछे गिवन है, यानी बेस जो है, ब्रेड्थ नहीं बेस, यानी लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल, इट इज 40 सेंटीमीटर। ओके, सो यहाँ पे मैंने 40 लिख दिया, फाइन। 41 स्क्वायर मीन्स 41 इंटू 41, 40 स्क्वायर मीन्स 40 इंटू 40, दोनों को मल्टीप्लाई करोगे 1681 आ जाएगा, और दिस इज 1600, सब्ट्रैक्ट करोगे 81। ओके, सो 81 को अगर आप देख सकते हो या आपको लर्न हो, तो 81 होता है 9 का स्क्वायर, मीन्स 9 9 जा 81, ये तो बिल्कुल सिंपल सा है। सो 81 को मैं स्क्वायर फॉर्म में जब चेंज करूंगी, सो इट विल बी 9 स्क्वायर, क्योंकि 9 का स्क्वायर होता है 81। ओके, अब देखिए पी स्क्वायर इज इक्वल टू 9 स्क्वायर आ गया, ऑन दी बोथ साइड्स वी आर हैविंग सेम पावर्स, पावर सेम है 2 and 2, तो उनके बेसिस भी सेम हो जाएंगे, मीन्स परपेंडिकुलर की वैल्यू हो जाएगी 9 सेंटीमीटर। जब परपेंडिकुलर 9 सेंटीमीटर हो गया है, कौन सी लेंथ, दिस वन, ये परपेंडिकुलर, इसकी वैल्यू कितनी आ गई 9 सेंटीमीटर, तो यू कैन सी दिस इज द लेंथ ऑफ सॉरी दिस इज द ब्रेड्थ ऑफ दिस रेक्टेंगल। 9 सेंटीमीटर जो है ये परपेंडिकुलर, ये इस रेक्टेंगल की ब्रेड्थ है, मतलब ब्रेड्थ हमें कितनी मिल गई 9 सेंटीमीटर। ठीक है, मींस ब्रेड्थ ऑफ रेक्टेंगल इज 9 सेंटीमीटर, और लेंथ आपको ऑलरेडी गिवन है 40 सेंटीमीटर क्वेश्चन में। ठीक है, तो पेरीमीटर के फॉर्मूले में हम पुट करेंगे इनकी वैल्यूज, 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेड्थ, लेंथ इज 40, ब्रेड्थ इज 9, 40 प्लस 9 इज 49, और 49 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे, सो इट विल कम 98 सेंटीमीटर। ठीक है, सो आपको क्या है, दोनों ही क्वेश्चन 6 और 7 दोनों ही क्वेश्चन में रेक्टेंगल दिया हुआ है, उस रेक्टेंगल में से आपको राइट एंगल ट्राइंगल को आइडेंटिफाई करके उनके हाइपोटेन्यूज, बेस एंड परपेंडिकुलर्स पता लगाने हैं, फाइंड करने हैं कौन से हैं, और उसके अकॉर्डिंग जो भी आपसे पूछा गया है क्वेश्चन में वो आपको फाइंड करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज 8। सो व्हाट इज द क्वेश्चन, इसमें भी आपको क्या दिया हुआ है, एक सिचुएशन दी हुई है, कंडीशन दी हुई है, वो राइट एंगल ट्राइंगल क्रिएट करेगी कंडीशन। ठीक है, उससे फिर हम वैल्यू फाइंड करेंगे जो भी पूछा जाएगा। तो क्या है क्वेश्चन, अ लैडर इज प्लेस्ड अलोंग अ वॉल एट अ डिस्टेंस ऑफ 5 मीटर फ्रॉम इट, कोई लैडर है, वो एक वॉल पे स्लैंटिंग इन्होंने खड़ी की हुई है। ठीक है, तो देखिए ये लैडर है और ये वॉल है, ये क्वेश्चन में फिगर आपको गिवन है। ठीक है, ये वॉल है और ये उस पे एक लैडर इन्होंने लगाई हुई है, ये फ्लोर है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन जो है वो क्या है, फ्लोर, तो फ्लोर के ऊपर ये वॉल है, ये इस पे लैडर लगाई हुई है। वो कह रहा है कि लैडर का जो फुट है उसकी डिस्टेंस वॉल से 5 मीटर है, ये जो डिस्टेंस है। ठीक है, इसकी इसका जो फुट है यानी ये, इसकी डिस्टेंस वॉल से 5 मीटर है, ये डिस्टेंस आपको 5 मीटर गिवन है। आगे वो बोल रहा है द लैडर टचेस अ विंडो इन दी वॉल, लैडर ऊपर क्या है, वॉल पे कोई विंडो बनी हुई है, यहाँ पे उसको टच कर रही है लैडर, एट अ हाइट ऑफ 12 मीटर, और वो विंडो कितनी हाइट पे है, 12 मीटर हाइट पे है फ्लोर से, मिस ये हाइट यहाँ तक कितनी हो गई 12 मीटर। ठीक है, फाइंड द लेंथ ऑफ द लैडर, इस लैडर की लेंथ आपको फाइंड करनी है। तो वॉल है तो ऑब्वियसली बिल्कुल वर्टिकल होगी, ऐसा तो है नहीं कि बिल्कुल पीछे की तरफ या आगे की तरफ झुकी हुई होगी, ऐसी तो नहीं होगी ना, वॉल है तो बिल्कुल वर्टिकल होगी, तो ऑब्वियसली ये 90 डिग्री एंगल होगा, मतलब ये कैसा ट्राइंगल बनेगा, राइट एंगल ट्राइंगल। तो अब जब इसकी शेप राइट एंगल ट्राइंगल की बन गई है, तो आप देख सकते हो कि इसका बेस 5 मीटर है और इसकी जो परपेंडिकुलर है वो 12 मीटर है। आपको हाइपोटेन्यूज फाइंड करना है, और हाइपोटेन्यूज क्या है, लेंथ ऑफ द लैडर। यस अक्षिता, ठीक है, इस लैडर की लेंथ किसके इक्वल है, इस ट्राइंगल के हाइपोटेन्यूज के इक्वल है। ठीक है, तो क्या लिखा हुआ है, लेंथ ऑफ लैडर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल, यही लिखा है मैंने। तो हमें हाइपोटेन्यूज फाइंड करना है, मीन्स सीधी सी बात ये है,
जो हाइपोटेन्यूज की लेंथ होगी वही लेटर की लेंथ होगी, ठीक है। तो पाइथागोरस थ्योरम मैं लगा रही हूँ यहाँ पे, एच स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर। बेस की वैल्यू है 5, परपेंडिकुलर की वैल्यू है 12, ठीक है। तो 5 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर, 5 स्क्वायर इज 25, 12 स्क्वायर इज 144, दोनों को ऐड करोगे इट विल बी 169, और 169 होता है 13 का स्क्वायर। लर्न कर लेना, अगर आपको लर्न नहीं है तो 20 तक स्क्वायर्स लिख के और उनको लर्न कर लेना। स्क्वायर कैसे फाइंड करते हैं आप अच्छे से जानते हो, नंबर को खुद से 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करना होता है, ठीक है। सो 169 है 13 का स्क्वायर। अब आप देख सकते हो एच स्क्वायर इज इक्वल टू 13 स्क्वायर, दोनों की पावर सेम है तो बेसिस भी सेम हो जाएंगे, मींस एच की वैल्यू हो जाएगी 13 मीटर। ये मीटर में गिवन है ना आपको यूनिट, तो यहाँ भी मीटर ही आएगा, और यूनिट लिखना मत भूलना अदरवाइज मार्क्स कटेंगे। तो हाइपोटेन्यूज की लेंथ हो गई है 13 मीटर, इसका मतलब लैडर की लेंथ भी 13 मीटर होगी। इट मींस हाइपोटेन्यूज इज इक्वल्स टू 13 मीटर इज इक्वल्स टू लेंथ ऑफ द लैडर, ठीक है। तो मैंने यही कहा था आपको कि कभी भी डायरेक्टली आपको राइट एंगल ट्रायंगल बना हुआ नहीं मिलेगा, कंडीशन दी जाएगी, उसके अकॉर्डिंग आपको देखना है कि क्या ये राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, और अगर बन रहा है तो फिर उसमें पाइथागोरस थ्योरम लगा के वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। ये भी सेम क्वेश्चन है जैसे पिछले वाला क्वेश्चन है, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, बस यहाँ पे हाइपोटेन्यूज के प्लेस पे बेस फाइंड करना है, ठीक है। तो क्या क्वेश्चन है देखो, अ 5 मीटर लॉन्ग लैडर, लैडर की लेंथ कितनी दी हुई है, वेट हिमांशी, पहले ये क्वेश्चन समझ लो, आप अभी भी ट्रायंगल इनइक्वलिटी में ही घूम रहे हो। अ 5 मीटर लॉन्ग लैडर व्हेन सेट अगेंस्ट द वॉल ऑफ अ हाउस रीचेज टू अ हाइट ऑफ 4.8 मीटर। इसका क्या मतलब हुआ लाइन का, कि कोई लैडर है जिसकी लेंथ 5 मीटर है, तो ये लैडर है, इसकी लेंथ 5 मीटर है। अगर इसे किसी हाउस के वॉल पे हम टिकाते हैं, लगाते हैं, मतलब जैसे लास्ट क्वेश्चन में लगाया था, ये वॉल है, वर्टिकल लाइन जो है ये लैडर है, मैंने इसको इस वॉल पे टिकाया हुआ है, तो ये कहाँ आ रही है, 4.8 मीटर हाइट पे आ रही है। 4.8 मीटर हाइट फ्लोर से है, फ्लोर से 4.8 मीटर हाइट पर जो वॉल का प्लेस है वहां पे ये लैडर उसको टच कर रही है वॉल को, ठीक है। तो ये हो गया 4.8 मीटर और ये है 5 मीटर। तो वो क्या पूछ रहा है, हाउ फार इज द फुट ऑफ द लैडर फ्रॉम द वॉल। इस लैडर का फुट जो है यानी कि ये पॉइंट, ये वॉल से कितनी दूर है, वॉल ये है और ये लैडर का फुट है, इससे कितनी दूर है, मीन्स ये हमको लेंथ फाइंड करनी है, और ये है बेस। आप देख सकते हो ये अगेन राइट एंगल ट्रायंगल बन गया जिसका परपेंडिकुलर है 4.8 मीटर एंड हाइपोटेन्यूज इज 5 मीटर। तो यू हैव टू फाइंड द बेस। सो व्हाट हैव आई रिटन हियर, डिस्टेंस ऑफ फुट ऑफ लैडर फ्रॉम द वॉल इज इक्वल्स टू बेस ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल। ये जो डिस्टेंस है इन दोनों के बीच की, ये इस राइट एंगल ट्रायंगल का बेस है, तो मैंने वो यहाँ पे लिख दिया। ओके, नाउ पाइथागोरस थ्योरम से आई विल फाइंड द वैल्यू ऑफ बेस ऑफ दिस राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। तो एच स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर यहां से हो गया एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, फाइन। बी स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज की वैल्यू है 5, वो मैंने पुट कर दी है, और परपेंडिकुलर की वैल्यू है 4.8, आई हैव पुट इट ओवर हियर, ओके। सो 5 स्क्वायर इज 25 एंड 4.8 स्क्वायर मीन्स 4.8 इंटू 4.8। तो डेसिमल नंबर्स को किस तरीके से मल्टीप्लाई किया जाता है, यू नो वेरी वेल, इट विल बी 23.04। 4.8 का स्क्वायर कितना आएगा, 23.04, फाइन। जब 25 में से आप 23.04 को माइनस करोगे सो इट विल बी 1.96, ओके। बी स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई है, 1.96। अब ये देखिए, आप ये कहोगे कि मैम ये तो डेसिमल में है, अब इसे हम ऐसे नंबर में कैसे कन्वर्ट करें जो स्क्वायर फॉर्म में आ जाए, क्योंकि अब तक तो आपको सिंपल होल नंबर्स दिए हुए थे, ठीक है। तो 1.96 को हम ऐसे कैसे नंबर में कन्वर्ट करें कि स्क्वायर फॉर्म में मिल जाए हमको। सो देखिए मैंने क्या किया, ये डेसिमल हटाया है पहले, यहां से ये डेसिमल में हटा रही हूँ। डेसिमल हटाना आप अच्छे से जानते हैं, व्हेनेवर वी हैव टू रिमूव द डेसिमल वी हैव टू पुट सेम नंबर ऑफ जीरो इन द डिनोमिनेटर इक्वल टू द डेसिमल प्लेसेस। मतलब उस नंबर में जितने डेसिमल प्लेसेस हैं उतने जीरो हमें डिनोमिनेटर में लगाने होते हैं। यहाँ पे आप देखो 2 डेसिमल प्लेसेस है ना, 2 डेसिमल प्लेसेस आर देयर, तो नीचे डिनोमिनेटर में कितने जीरो आ जाएंगे, 2 जीरो।
और ये डेसिमल रिमूव हो जाएगा, सो इट विल बी 196 डिवाइडेड बाय 100। ओके, 196 होता है 14 का स्क्वायर, वो मैंने 14 इंटू 14 लिख दिया। 196 किसका स्क्वायर होता है? 14 का स्क्वायर। और 100 होता है 10 का स्क्वायर। ठीक है, तो मैंने इन दोनों नंबर्स को अब स्क्वायर फॉर्म में लिख दिया। अब मैं इनको इजीली स्क्वायर फॉर्म में लिख सकती हूँ। ठीक है, डेसिमल नंबर को स्क्वायर फॉर्म में चेंज करने में हो सकता है आपको थोड़ी सी परेशानी हो, लेकिन इसे अब मैं इजीली स्क्वायर फॉर्म में चेंज कर सकती हूँ। 23.04 इन दोनों इसको मल्टीप्लाई करने पे आया है। 4.8 का होल स्क्वायर क्या होगा? 4.8 को खुद से 2 टाइम मल्टीप्लाई करना है, मींस 4.8 इंटू 4.8। इसको मल्टीप्लीकेशन को जब आप सॉल्व करोगे तो ये 23.04 आएगा। ठीक है, मैं सॉल्व करके नहीं बता रही हूँ, बिकॉज यू नो वेरी वेल हाउ टू मल्टीप्लाई डेसिमल नंबर्स। चैप्टर 2 में काफी दिनों तक आपने यही चीज पढ़ी। ठीक है, सो 14 स्क्वायर अपॉन 10 स्क्वायर हो गया। मैंने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को स्क्वायर फॉर्म में लिख दिया। 196 होता है 14 का स्क्वायर और 100 होता है 10 का स्क्वायर। ठीक है, इसमें आप एक चीज और यहाँ पे कर सकते हो, ये 14 अपॉन 10 का होल स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि दोनों के स्क्वायर पावर सेम है ना, तो उस पावर को हम टोटली बाहर लगा सकते हैं कॉमनली। ठीक है, तो अंदर तो रहेगा 14 अपॉन 10 और उसके पूरे के ऊपर पावर आ जाएगा 2। इसका मतलब यही है कि न्यूमरेटर का भी स्क्वायर है और डिनोमिनेटर का भी स्क्वायर है। न्यूमरेटर का भी स्क्वायर है एंड डिनोमिनेटर का भी स्क्वायर है। ठीक है, अब आप देखिए बी स्क्वायर इज इक्वल टू 14 अपॉन 10 का स्क्वायर, पावर दोनों की सेम है, तो b की वैल्यू क्या हो जाएगी? बेस सेम हो जाएंगे, तो b इज इक्वल टू 14 अपॉन 10। और 14 अपॉन 10, ये 10 मुझे यहाँ से रिमूव करना है, एक जीरो डिनोमिनेटर में है तो वापस डेसिमल प्लेस लग जाएगा, तो हो जाएगा 1.4। 14 अपॉन 10 को क्या लिख सकते हैं? सिंपली 1.4, ये भी आप अच्छे से जानते हैं। ठीक है, सो क्योंकि यूनिट हमें मीटर में गिवन है, इसलिए यहाँ पे आएगा 1.4 मीटर। यानी इस बेस की वैल्यू कितनी आ गई? लेंथ 1.4 मीटर। अगर ये 1.4 मीटर है तो लैडर का जो फुट है उसकी डिस्टेंस वॉल से हो जाएगी 1.4 मीटर। ठीक है, सो डिस्टेंस ऑफ लैडर्स फुट फ्रॉम वॉल इज इक्वल टू 1.4 मीटर। मतलब अल्टीमेटली इसमें हमें क्या करना था? बेस की वैल्यू फाइंड करनी थी। ठीक है, तो ये तो आपके आज के क्लास वर्क के क्वेश्चंस थे। होमवर्क में देखो क्वेश्चन नंबर 3 एंड 4 मैं आपको दूंगी, तो किस तरीके से करने हैं ये बिल्कुल सिंपल है, आपको कुछ भी नहीं करना है इसमें, जस्ट फॉर्मूले में वैल्यू पुट करनी है। ठीक है, द बेस एंड हाइट ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल आर 7 सेंटीमीटर एंड 24 सेंटीमीटर। बेस दिया हुआ है राइट एंगल ट्राइंगल का 7, यानी b इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, और हाइट, हाइट मीन्स परपेंडिकुलर, हाइट इज इक्वल टू परपेंडिकुलर, ये आपको क्वेश्चन में गिवन है 24 सेंटीमीटर। फाइंड इट्स हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज फाइंड करना है, तो सिंपली इसमें क्या लगाओगे? पाइथागोरस थ्योरम। तो एच स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर, वैल्यूज रख के उनको सॉल्व करोगे तो 625 आएगा, और 625 होता है 25 का स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे देखो दोनों की पावर सेम है, तो एच की वैल्यू सिंपली 25 सेंटीमीटर हो जाएगी, विच इज द हाइपोटेन्यूज ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल। ऐसे ही फोर्थ क्वेश्चन है, इन अ राइट एंगल ट्राइंगल द टू साइड्स आर 15 मीटर एंड 8 मीटर, फाइंड द हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज तो आपको फाइंड करना है, और अदर टू साइड्स आपको दी हुई है 15 एंड 8। तो हाइपोटेन्यूज के सिवा बाकी दोनों साइड्स क्या होती हैं राइट एंगल ट्राइंगल में? बेस एंड परपेंडिकुलर। तो 8 एंड 15 आपको दिया हुआ है, तो इनमें से कोई सा भी आप बेस ले सकते हो, कोई सा भी परपेंडिकुलर ले सकते हो। मैंने बेस लिया है 8 और परपेंडिकुलर लिया है 15, तो उसी तरीके से हाइपोटेन्यूज की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। ठीक है, 289 का 289 होता है 17 का स्क्वायर, तो हाइपोटेन्यूज की वैल्यू आ जाएगी 17 मीटर। यूनिट का ध्यान रखना, यूनिट चेंज नहीं होनी चाहिए। ठीक है, दिस वाज ऑल फॉर टुडे, थैंक यू एवरीवन।